Good morning, class. So, in the last class, we have talked about many diseases that were related to bacteria or viral disease or some other protozoan, that was Plasmodium, that was causing the malaria. So, today also we'll be continuing with some diseases, only some of them are left, and rest we'll be talking about immunity. Immunity is a very important topic for your 12th class also, and for also the higher studies. So, immunity is something that is regulating our many of our body activities, and majorly it is affecting or saving us from various different diseases and killing the different antigens that enter in our body and that are not good for our body. So first we'll discuss some of the left diseases. Only 4 or 5 are there, so just let's do them and then we'll be completing immunity also today. What is amoebiasis? The amoebic dysentery. The pathogen which is said to be causing this is Entamoeba histolytica. It is also a protozoan parasite. Then the organs that it is affecting, so it is mainly affecting the large intestine of men on, and now as we all know कि जो large intestine है वहाँ major जो function होता है वो absorption का होता है. Small intestine तक जो होता है वो digestion ख़त्म हो जाता है, और large intestine में the major function that occurs inside the large intestine is of absorption. तो ये affect करता है majorly absorption को, तो directly और indirectly ये हमारे stomach activities को affect कर रहा है. और व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन के किस चीज़ से ये फैल रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. द हाउस फ्लाइज. सो जो हाउस फ्लाइज होती हैं दे सिट ऑन वेरियस dirty things and then they sometimes sit on a food that is open. So majorly it is a thing that is related to food poisoning. So ये जो हाउस फ्लाइज हैं ये मैकेनिकल कैरियर हैं इस डिजीज़ की, और इवन कंटामिनेटेड फूड इन वाटर with fecal matter. So this is all the methods of transmission of this disease, amoebiasis or the amoebic dysentery. And what are the symptoms of this disease again? So the symptoms are loose motion, abdominal pain, the pain in the area which is just below the stomach. So that is majorly the part of large intestine. तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन्स होता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, एंड excess mucus and stool is there, and also blood clots are released out from the stool. So these are the things that happen in this case. Now ascaris. It is again a disease which is caused by a nematode. So the pathogen that is causing the disease, it is ascaris lumbricoides, and the organs that it's affecting, it's the intestine of man. So again this is a stomach related disease. What is the method of transmission? The method of transmission is again the contaminated water, vegetables and fruits. So sometimes the vegetables we eat, they have in them some insects, so they are not very healthy vegetables or fruits. Even the flies are sitting on the fruits and vegetables, and if we don't wash them before eating or before cooking them, then it could be vegetables so we can cook, but fruits we cannot cook. We are eating them raw. That's why we have to wash them very properly to avoid these kind of diseases, as they are mainly spread by the contamination by different carriers such as flies and mosquitoes. All these things are a major cause of spreading of these diseases, and the symptoms is the internal bleeding, muscular pain, fever and anemia. That is a loss of blood. The blood inside the body becomes very less. And the other symptom of this is the blockage of the intestinal passage. So these are the various symptoms that can be seen if someone is affected by this nematode, that is ascaris lumbricoides. Then one another disease, it is filariasis or elephantiasis. तो ये भी एक पैरासाइट से होती है, a nematode parasite that is causing many serious problems. In the picture you can see, so the name of that pathogen is Wuchereria brancoffti and Wuchereria malai. So both of these are causing the disease, that is filariasis. So the organs it affect is the lymphatic vessels of the lower limbs. So you can see in the picture that the lady who is sitting have normal hands, but जो उसके lower limbs हैं, the legs, that are majorly affected by the disease, and as it is affecting the lymphatic vessels and genital organs. So mainly below the abdomen, the parts it is affecting. Main target organ of this nematode is the lymphatic vessels. What is the method of transmission? Biting of infected female Culex mosquito. तो जो उस मलेरिया में जो था, that was
एनाफ्लीज मॉस्किटो और फाइलेरियासिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ अ फीमेल अगेन बट अ क्यूलेक्स मॉस्किटो. What are the symptoms? The symptoms are chronic inflammation of the organs. So the organs that it is affecting, the lymphatic vessels, the lower limbs, वो बहुत ज़्यादा swelling हो जाती है उनमें. That could be a chronic inflammation and abnormal swelling of the lower limb, scrotum, penis, or as it is affecting the genital organs also, तो ये इनमें भी swelling cause करता है. Hence the disease was named as elephantiasis or filariasis. These are the different symptoms and methods by which the disease filariasis or elephantiasis is spreading. Then comes the ringworms. It is a very common disease, mostly in the seasons that are very moist, because it is the most ideal temperature for the fungi to survive. That's why ये जो होती है सबसे ज़्यादा मानसून टाइम में होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है. तो ringworm, the pathogen that is causing it is Microsporum trichophyton, and another one is Epidermophyton. So all these are the fungi that are responsible for causing these ringworms. The organs it affects is mainly the skin, nails, folds of skin and groin. So these are the major organs जो कि यहाँ अफेक्ट करता है. folds of the skin, जहाँ भी skin fold होती है तो वहाँ पे जो हमारा sweat होता है, that is very much being secreted out in the monsoon time in the humid conditions. So वहाँ पे जो fungi है तो easily grow कर जाता है. The methods of transmission of this disease are acquired from the soil using towel, cloths or even comb of infected individual. तो ये बहुत ज़्यादा contaminated है, बहुत easily contaminated है. It is very infectious, तो ये बहुत जल्दी spread करती है even by using the comb or clothes of someone who is infected from the disease. The symptoms are appearance of dry scaly lesions in skin, nails and scalp. तो ये मोस्टली स्किन पे होती है, स्कैल्प पे होती है, एंड जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, स्केल्स दिखने लगते हैं वहाँ पे. पिक्चर इन द पिक्चर यू कैन सी दैट जो लेसन डेवलप होते हैं दे आर ऑल्सो अकम्पनीड विद इंटेंस इचिंग. तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग भी प्रिवेल हो जाती है. सो दीज आर द वेरियस सिम्टम्स दैट आर that can be said कि yes, if someone is having these symptoms then the person is affected from ringworms. Then what are the preventions of these diseases? How we can prevent some diseases? We cannot prevent all the diseases, but still we can take some measures to control the diseases. So prevention and control of infectious diseases. The maintenance of personal and public hygiene, it is the first and the foremost point that we have to maintain in order if we want to maintain our health properly. तो हमें hygiene का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है. In nowadays also you can see how people are washing their hands regularly. So that is just because to maintain the hygiene so that जो भी virus या bacteria है it does not enter in us and it does not affect our body in any way. So hygiene is very important. Then comes the personal hygiene. It includes consumption of clean drinking water, food, vegetables जो भी हम consume कर रहे हैं. It should be very clean. It should be washed with boiling water. Then proper disposal of waste and excreta should also be taken care of. जो भी वेस्ट एंड एक्सक्रीटा जो हमारे घर से निकलता है, इट शुड बी डिस्पोज वेरी प्रॉपरली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स और डिफरेंट बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई इसको हम बहुत अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए, अदरवाइज इट कैन बी प्रॉब्लम और कैन कॉज वेरियस डिजीजेज. देन पीरियोडिक क्लीनिंग वाटर रिजर्वॉयर्स, पूल्स. जो डिफरेंट पूल्स और वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जहाँ से हमारे घरों में पानी आता है, तो वो भी उनकी क्लीनिंग रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, बिकॉज कंटेमिनेटेड वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी एंड वेरी सीरियस डिजीजेज लाइक कॉलरा एंड टाइफॉइड. ऑल दीज आर caused by the contaminated water. इसलिए हमको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा for the water bodies from where the water is being supplied. Then avoiding close contact with the infected person because it is infectious. तो infectious disease होती हैं बहुत जल्दी spread करती हैं. अब जो vector borne diseases हैं like the malaria, तो हमें we should try to control the vectors of this place. Mosquitoes कम से कम वहाँ develop हों. We should not let water to स्टे एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम. जो भी कूलर्स हमारे वहाँ वाटर स्टोर होता है तो हमें वो जल्द से साफ़ कर देना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे मॉस्किटोज डेवलप हो सकते हैं. अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरियाज़. मॉस्किटो नेट्स यूज़ करने चाहिए. विंडो और डोर्स जो होते हैं दैट शुड बी फिटेड विद वायर मैश सो दैट द
Mosquitoes and other flies could not enter in them. All the precautions are used full of vector-borne diseases like dengue, chikungunya, malaria, filarial. All this ये सब जो mosquitoes और different flies से हो रहे हैं, तो इनको हम control कर सकते हैं by using these different precautions of controlling the vectors. Then immunity. Now we will be talking about immunity. What is immunity? How it is helpful for us? How it is controlling the various diseases? So immunity is the ability of an organism to resist infection or to overcome infection. So immunity is basically the डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस से लड़ने की पावर देते हैं. तो इवन इफ इट इज़ नॉट प्रिवेंटिंग द डिजीज़, इट कैन लेसन इट्स इफेक्ट. तो ये रेजिस्ट करती है इन्फेक्शन को टू अ पॉइंट, जब तक कि बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं हो जाता है. सो दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी: innate immunity, that is non-specific, and acquired immunity, that is specific. So innate immunity, which is specific, which is non-specific, it is present in our body since the time of birth. So it is being delivered to us through the mother. तो जब the fetus is dead inside the body of मदर, तो उससे जो प्लेसेंटा होता है उसके थ्रू कुछ एंटीबॉडीज शेयर करते हैं वो लोग. सो IgG इज़ द मेन एंटीबॉडी दैट इज़ बीइंग शेयर्ड फ्रॉम द मदर्स टू द ग्रोइंग फीटस. तो ये नॉन स्पेसिफिक है बिकॉज ये किसी डिजीज़ के या स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट नहीं बनी है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो ये छोटे मोटे जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं उनसे लड़ सकती है, बट इट कैन नॉट फाइट वेरियस डिजीजेज दैट आर वेरी डेंजरस. सो उसके लिए जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इट कम्स इन प्लेस, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है जब हम किसी डिजीज़ के कांटेक्ट में खुद आते हैं, जब हमारी बॉडी खुद वो फेस करती है तभी वो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर सकती है. लाइक इन द केस ऑफ चिकन पॉक्स मोस्टली इंडिविजुअल्स में एक ही बार होती है, बिकॉज एक बार वो होती है तो फिर बॉडी वो उस डिजीज़ को पहचान लेती है. देन व्हाट इज़ इट इज़ डूइंग दैट, वो उसको उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स बनाती है, और वो मेमोरी सेल्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो वो दोबारा लाइफ में वो डिजीज़ को कॉज नहीं होने देते. So now talking about them in detail, जो the immunity which is the non-specific immunity or the innate immunity, it is inborn or natural immunity. तो जो ये है वो टू टाइप्स की होती है, द सरफेस बैरियर एंड द सेलुलर एंड बायोकेमिकल बैरियर. सरफेस बैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमारे आती है दैट इज स्किन. स्किन इज अ सरफेस बैरियर. वो बहुत सारी चीज़ों को हमारे अंदर एंटर करने से प्रिवेंट कर रही है, बट स्टिल जो बहुत ज़्यादा छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट एंटर इन आवर बॉडी, नॉट बाय स्किन, बाय आवर माउथ ओनली दे एंटर, बाय आवर नोज इट एंटर्स. सो सरफेस बैरियर किसके अंडर आता है? अंडर द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. एंड सेलुलर एंड बायोकेमिकल, कुछ सेल्स और कुछ केमिकल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, द HCl एंड ऑल, और जो डिफरेंट टेरेस्ट्रियल एंजाइम्स होते हैं, ये सब भी they are under the category non-specific immunity. Then comes the surface barrier. What is the surface barrier? It is the first line of body defense. तो सबसे पहले यहीं से immunity start होती है. फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस मीन्स यहाँ से जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है. तो इट इंक्लूड्स द एक्सटर्नल बैरियर्स दैट चेक्स द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इन द बॉडी. तो इट इज़ आइडेंटिफाइड एज द फिजिकल और द फिजियोलॉजिकल बैरियर. नाउ व्हाट आर द फिजिकल बैरियर्स? सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट वन इज द स्किन. So the most important physical barriers are skin, hair, cilia of the nasal cavity, mucous lining, and muscular action. In our nose, there is some mucus present that is trapping the various germs that are entering in our body, the dust particles. Then there are the hairs also present inside the nasal cavity. They are also the first line defense of physical barrier. तो skin क्या करती है? जो skin होती है, in the diagram you can see the structure of skin. The skin which is we can see under the microscope by cutting a TS, the transverse section. तो जो skin होती है that prevents the entry of pathogens. How it is doing it? The sweat produced by the sweat glands and oil produced by the sebaceous gland are bactericidal and fungicidal properties. जो हमारी बॉडी में sweat present होता है, sweat जो secrete होता है by the minute pores of our skin, then जो sebaceous gland हैं जो कि skin में present होते हैं under the skin,
सो ये जो प्रेजेंट होते हैं दैट आर हैविंग द बैक्टीरियासाइडल एंड फंजीसाइडल प्रॉपर्टी. सो साइडल मीन्स दे आर हैविंग द एबिलिटी टू किल द फंजाई एंड बैक्टीरिया. तो इसीलिए ये स्किन हमारी बॉडी में किसी भी फंजाई या बैक्टीरिया को ईजिली एंटर नहीं करने देती. देन कम्स द अनदर वन, म्यूकस लाइनिंग. So mucus lining is found in the respiratory tract, digestive tract, urinary tract, reproductive tract secretes mucus. ये सब जो mucus secrete करते हैं ये दिस इज जस्ट बिकॉज कि ये जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको ट्रैप कर पाएँ एंड दे आर बीइंग secreted out only और ये हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाएँ. सो दे ट्रैप द माइक्रोब्स एंड मेक्स देम immobilized. सो नाउ दे कैन नॉट मूव एंड दैट्स वाई दे कैन नॉट ऑल्सो एंटर इन अस. देन comes physiological barrier. The chemicals secretion like lysozymes, skin secretion, saliva, earwax, they all form the physiological barriers. So lysozymes are secreted mainly from the eye. So it is an lysozyme जो होता है वो antibacterial enzyme होता है. It kills mainly the bacteria that. and ये कहाँ पर present होता है lysozyme? tears में जो हमारे आँखों से tears निकलते हैं that is having a major constituent that is lysozyme. जो नेजल सिक्रीशन होता है, सलाइवा होता है, मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स में ये लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है एंड इट लाइसिस द बैक्टीरियल सेल. जो बैक्टीरियल सेल है उसको ये ब्रेक डाउन कर देता है. देन स्किन सिक्रीशन. अगेन स्किन सिक्रीशन वही होता है, स्वेट, सीबम, एंड दे हैव एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरिसाइडल एंड फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज and that's why they avoid the growth of bacteria and fungus on the skin. Now saliva, it is also the physiological barrier. The saliva also contains the lysozyme and they are helpful in the lysis or breakdown of bacteria. जो gut जो हमारे स्टमक में secretions होते हैं, HCl, gastric juices, ये भी हमारे माइक्रोब्स बहुत सारे जो हमारे बॉडी में अगर एंटर कर भी जाते हैं तो स्टमक में एंटर करने से इनको प्रिवेंट करता है. देन earwax also सिक्रिएटेड इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. ये भी बैक्टीरियासाइडल होता है नेचर में और ये रिपेल करता है इंसेक्ट्स को और जो डस्ट हमारे कानों से एंटर कर सकती है हमारे अंदर उसको ट्रैप कर देता है ये एयरबैग्स. तो दिस इज ऑल्सो फिजियोलॉजिकल बैरियर. नाउ द सेलुलर एंड बायोकेमिकल बैरियर. अब इसमें क्या क्या आता है? ये जो सेलुलर अब बायोकेमिकल बैरियर्स हैं ये है द सेकेंड लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस. तो ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फैगोसाइट्स, natural killer cells, the NK cells, interferons, inflammatory response. Now what is phagocytes? What is phagocytosis? Actually phagocytosis is the process of engulfing and destroying the microbes by some cells. तो कुछ हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड एज द फेगोसाइट्स, जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, अगर कुछ ऐसा माइक्रोब एंटर कर गया है विच एक्ट्स एज एंटीजन तो उसको ये एनगल्फ करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? फेगोसाइटोसिस. And the cells that engulf it are called as phagocytes. So cytes word is also always used for the cell. जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं दे आर मेनली द मैक्रोफेजेस एंड दे आर टाइप्स ऑफ WBC. द वाइट ब्लड सेल्स के एक टाइप्स होते हैं ये न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं इन द फेगोसाइटोसिस प्रोसेस. तो नाउ द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस कैसे ये होता है? इट इज़ नॉट क्लियर आई गेस. तो इन द डायग्राम यू कैन सी जो भी माइक्रोब है वो एंटर किया हमारी बॉडी में. ये स्यूडोपोडिया है. दिट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉल्स फुट. ये डेवलप होते हैं. फिर ये जो एंटीजन एंटर किया हमारी बॉडी में तो इसमें डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट हैं. लाइसोजाइम ये साइटोप्लाज्म में लाइसोजाइम प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है. तो फिर ये आगे आगे बढ़ता है. तो जैसे ये बॉडी के अंदर एंटर करता है ये इसके अराउंड एक डेवलप हो जाता है. बहुत सारे एंजाइम्स इसको कैप्चर कर लेते हैं और फिर जो बनता है पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज द फेगोसोम. सो इट इज़ अ वेसिकल. नाउ अब ये इस वेसिकल में ट्रैप है. नाउ व्हाट हैपेंस, जो फेगोसोम बना है इसके साथ लाइसोसोम अटैच हो जाता है बिकॉज वी ऑल नो लाइसोसोम जो होते हैं इसमें बहुत सारे सुसाइडल एंजाइम्स होते हैं, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जिनका पीएच बहुत कम होता है. तो दे आर वेरी हेल्पफुल इन किलिंग वेरियस माइक्रोब्स. तो ये इसके साथ एंटर हो जाता है. देन क्या बनता है, एक जो यूनिट बनती है फाइगोसोम और लाइसोसोम को मिला के दैट इज कॉल्ड एज फेगोलाइसोसोम. अब फेगोलाइसोसोम मिलते हैं. अब यहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं वो डाइजेशन उनका स्टार्ट हो जाता है. नाउ दे आर द पार्शली डाइजेस्टेड. अब ये जो एंजाइम्स लाइसोसोम के हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोब्स को और ये रेसिडुअल बॉडी बनती है दैट इज़ बीइंग एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम अस. दिस इज हाउ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस अकर्स इन आवर बॉडी. नाउ द नेचुरल किलर सेल्स और द NK सेल्स, इनका क्या फंक्शन होता है?
जो नेचुरल किलर सेल्स हैं दे आर द नॉन फैगोसाइटिक लार्ज लिम्फोसाइट्स। ये इनमें जो प्रॉपर्टी होती है ये फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी नहीं है, बट ये दूसरे तरीके से हम अपने जो बॉडी डिफेंस सिस्टम है उसको शो करते हैं। इट मेनली रिकग्नाइजेज द वायरल इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स। जो एनके सेल्स होते हैं ये मेनली किसके लिए होते हैं? वायरल इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स। फैगोसाइट्स मेनली माइक्रोब्स के लिए होते हैं, डिफरेंट माइक्रोब्स, बट जो एनके सेल्स हैं ये वायरल और ट्यूमर सेल्स के लिए हैं। ये क्या करते हैं? दे डिस्ट्रॉय देम द वायरल सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? बाय सिक्रीटिंग साइटोलाइसिन। ये साइटोलाइसिन सिक्रीट करते हैं जिससे जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो मेनली दे आर वर्किंग इन द केस ऑफ कैंसर। So and they are also called as the killer cells. Now the interferon. Interferon are the antiviral glycoprotein produced by viral infected animal cell. अब जो एनिमल सेल हमारी बॉडी में हैं, एनिमल्स जो इंटरफेरॉन है वो प्लांट नहीं सेक्रेट करते हैं। तो जो एनिमल सेल्स हैं उनमें अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो वायरल इन्फेक्शन अगर किसी भी एनिमल सेल में होता है तो वो एक सब्सटेंस ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करना स्टार्ट करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरफेरॉन। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो होता है इंटरफेरॉन, इट प्रोटेक्ट्स द नेबरिंग सेल्स फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। अब ये जो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस हो रहा है ये बाकी सेल्स को ये बताता है कि येस दिस सेल इज़ इन्फेक्टेड बाय अ वायरस, तो नाउ यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। सो दिस इज़ हाउ इंटरफेरॉन इज़ वर्किंग इन the second body defense, second line of body defense. So it is mainly stimulating neighbor cells to synthesize a protein that interfere viral replication. तो ये जो viral replication है उसको रोकता है। जो neighboring cells है उनको ये सबसे पहले ये बताता है इट by secreting it from the viral infected cell, ये secrete होता है, neighboring cells के पास जाता है, then now the neighboring cells के know कि yes now some virus is there in the body, तो they have to protect themselves। तो वो जो neighboring cells होते हैं वो एक प्रोटीन secrete करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि इंटरफेयर करता है with the viral replication. Now it also activates the macrophages and NK cells। अब ये इन दोनों को एक्टिवेट करता है, then ये रिकग्नाइज करता है उन वायरस को और फिर NK cells जो होते हैं वो इनको किल कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ इंटरफेरॉन वर्क्स। सो नाउ दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस हाउ इंटरफेरॉन वर्क्स। जो वायरस है ये वायरस पूरा एंटर नहीं करता है, उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है। तो इसका वायरस का जो भी न्यूक्लिक एसिड है, ये RNA या DNA कुछ भी हो सकता है, तो वो एंटर किया इन द सेल ऑफ एन एनिमल। नाउ व्हाट हैपेंस, इसने अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट किया। अब यहाँ पे वायरस सेल एंटर किया तो जो इंटरफेरॉन है उन्होंने ये पहचान लिया कि येस नाउ देयर आर सम वायरल सेल्स। वायरस अपना जो रेप्लिकेटिव मशीनरी है वो कर रहा है ऑन इट्स ओन पेस। अब ये जो सेल इन्फेक्टेड है वो इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज़ द होस्ट सेल। होस्ट सेल मतलब जहाँ पे वायरस एंटर किया है। नाउ व्हाट हैपेंस, जो इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज़ हुए, दे कम टू द नेबरिंग सेल्स। वहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो सेल है ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वायरस से, नाउ यू हैव टू सेव योर सेल्फ। सो व्हाट डज दे डू, दे इंटरफेरॉन स्टिमुलेट करता है कुछ ऐसे जीन्स को जो कि ऐसा प्रोटीन बनाते हैं जो वायरल की रेप्लिकेशन के साथ इंटरफेयर करता है और उसको रोकता है। सो नाउ दीज सेल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड जो एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं ये ब्लॉक कर देते हैं वायरल का रिप्रोडक्शन। तो नेबरिंग सेल्स होते हैं, दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन। और एनके सेल्स भी यहाँ पे ये स्टिमुलेट करता है एनके सेल्स को, एनके सेल्स स्टिमुलेट होके वायरल सेल्स को किल कर देते हैं। नाउ कम्स द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। यू कैन सी कि अगर देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन द स्किन और एनी एरिया, तो वो एरिया रेडिश हो जाता है। अगर कोई चोट लगी है, एनी टाइप ऑफ बर्न इज़ देयर, तो दैट एरिया गेट्स रेडिश और एक इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है। दैट इज़ ऑल्सो अ बॉडी डिफेंस प्रॉपर्टी। वो बॉडी शो करती है कि दिस इज़ द एरिया कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है एंड इट हैज़ टू बी हील्ड, इसलिए वो अपने आप को हाईलाइट कर देता है वो एरिया, सो दैट वी नो कि दिस इज़ द एरिया दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। So it is a localized response to injury, infection or any irritation. Now symptoms are getting redness, swelling, pain, increased body temperature. Fever जो होता है it is also a response of the immune system. अगर फीवर हमारी बॉडी में है तो वो ये शो करने के लिए है कि हमारी बॉडी किसी इन्फेक्शन से लड़ रही है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सो दैट इट कैन कोप अप विद द प्रॉब्लम। जो भी उसके अगर कोई माइक्रोब उसके अंदर एंटर किया है तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इसलिए बढ़ाते हैं हम लोग, बढ़ जाता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर इसलिए सो दैट वो उस माइक्रोब को हम किल कर सकें।
Now comes the acquired or the specific immunity. It is the defense mechanism that is acquired by healthy person against specific pathogens and infection. तो ये specific pathogens और infection के against हमारी body acquire करती है. Now it forms the third line of body defense. Lymphocytes are the major components and they are activating specific body defense. So lymphocytes दो type के होते हैं, T lymphocytes and the B lymphocytes. Now what are T and B lymphocytes? So the T lymphocyte, the undifferentiated lymphocytes, they originate from the stem cells of bone marrow. जो bone marrow की stem cells होती हैं, what are stem cells? जो जिनमें ये property होती है कि वो पूरे एक complete body को develop कर सकती हैं. तो ये जो T cells generate हो रही हैं, ये bone marrow की stem cells से generate होती हैं. And some of them they migrate to the thymus. ये generate होती हैं बोन्स मैरो में, बट ये जो इनका मैचुरेशन है वो थाइमस में होता है. एंड देन दे गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू टी लिम्फोसाइट. और बी लिम्फोसाइट कहाँ से अब मिलती है हमें? बी लिम्फोसाइट, दीज आर द अनडिफ्रेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स. दे ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ बोन मैरो and some of them they migrate to bursa equivalent and differentiated into B lymphocytes. So bursa क्या होता है? This is the area in the birds there is a area which is called as bursa of fabricus, and bursa is equivalent is the hypothesized lymphoid tissue in bone marrow. तो एक specific hypothesized bone marrow में जो tissue होता है that is bursa, and it is found bursa equivalent is found in mammals and bursa fabricus is found in birds. So ये जो area होता है यहाँ पे B lymphocytes का maturation और production होता है. ये कहीं भी move नहीं करती अपने maturation के लिए, बल्कि T lymphocytes they were going to thymus for their maturation. अब एंटीजन क्या है? इट इज़ एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर्स अ बॉडी एंड इट स्टिमुलेट्स द इम्यून रिस्पॉन्स. सो एंटीजन हैज़ टू प्रॉपर्टीज़. क्या जो दो प्रॉपर्टीज़ होती है एंटीजन की? इट इज़ एंटीजेनिसिटी एंड द इम्यूनोजेनिसिटी. एंटीजेनिसिटी क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन टू जनरेट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी. तो हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर कर गया है, और जो एंटीजन है उसके पास दो एबिलिटीज़ होती हैं. सो दैट ये जनरेट करता है एक प्रॉपर्टी जो होता है एंटीजेनिसिटी. ये एबिलिटी होती है एंटीजन की, ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है अगेंस्ट दैट एंटीजन जो ऑलरेडी एंटर कर गया हमारी बॉडी में. और दूसरी एबिलिटी जो होती है दैट इज़ इम्यूनोजेनिसिटी. सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एंटीजन टू इंटरैक्ट विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी. पहले एंटीबॉडी को जनरेट करना, एंटीजेनिसिटी, फिर उस एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करना उस एंटीबॉडी का इज कॉल्ड एज इम्यूनोजेनिसिटी. सो बोथ दीज प्रॉपर्टीज आर ऑफ द एंटीजन ओनली. Now the biochemically antigens are proteins, large polysaccharides, lipids, fats or nucleic acids, and sometimes they can be entire pathogen that can act as antigen. तो in the case of polio virus, जो हम polio virus लेते हैं, it is an activated antigen only. So it can be anything. It can be a lipid or a large fatty acid or polysaccharide. It can be anything. Now antibody or immunoglobulins. The protein molecule. What is antibody? It is also called as an immunoglobulin. जो protein molecule होते हैं, basically antibody is a protein, and it is produced by B lymphocytes and it is acting against some specific antigen. ये mainly 5 types में classified होता है: IgM, IgA, IgE, IgD and IgG. So IgM जो होता है it is a pentamer and it is a megaglobulin. Pentamers it is having 5 chains. It is the first जो होता है, इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी जो इंजर्ड एरिया पे सबसे पहले जो पहुंचती है दैट इज़ द IgM एंटीबॉडी और द IgM इम्यूनोग्लोबुलिन. जो IgA है वो एंटीबॉडी से सिक्रीट होता है, IgD है वो बाइंड करता है बी लिम्फोसाइट से और सरफेस रिसेप्टर की तरह काम करता है. IgE प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जी. जो जब भी कोई एलर्जी कंडीशंस होती है हमारी बॉडी में, वहाँ सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबुलिन पहुँचता है दैट इज़ IgE. and IgG it is crosses the placenta and it is protecting the fetus from any problem. So these are the different 5 types of antibodies in our body. Each chain contains constant and variable region. So जो immunoglobulin है वो दो chains के मिलके बने होते हैं. One is having a constant region and one is having a variable region. तो constant region में क्या होता है, जो amino acid sequence होते हैं वो constant होते हैं और पूरी antibody में वही सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट, दे आर नॉट चेंजिंग. और वेरिएबल रीजन जो होता है उनमें जो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं वो वेरी करते हैं विद डिफरेंट एंटीबॉडीज. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टेंट रीजन एंड
द वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट में जो अमीनो एसिड वो चेंज नहीं हो रहे हैं किसी भी एंटीबॉडी में, बट वेरिएबल रीजन में जो है वो चेंज हो रहे हैं, द अमीनो एसिड्स आर गेटिंग चेंज. सो वेरिएबल रीजन इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ वाई आर्म, फॉर्म्स एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. तो जो वेरिएबल रीजन होता है वहीं पे जो एंटीजन होता है वो बाइंड करता है, क्योंकि वो वेरिएबल है इसलिए इट हैज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एंटीजन्स. ये यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट होता है, यहीं पे जो बाइंडिंग होता है एंटीजन्स का वो इट टेक्स प्लेस एट दिस पोजिशन ओनली. सो हियर यू कैन सी एंटीजन कंबाइनिंग साइट, दीज आर द एंटीजन कंबाइनिंग साइट. यहाँ पे एंटीजन आगे इंटरैक्ट करता है और दिस इज द वेरिएबल चेन एंड दिस इज द कांस्टेंट चेन. और ये जो दोनों चेन्स हैं दे आर लिंक टुगेदर बाय अ डाइसल्फाइड लिंकेज. ये हैवी है एंड दिस इज द लाइट चेन. हैवी मीन्स हैवी बिकॉज इट इज़ ऑफ लॉन्गर लेंथ, इसलिए ये ज़्यादा अमीनो एसिड से मिलके बनी होगी और ये कम अमीनो एसिड से मिलके बनी है. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ बी lymphocytes? So the role of B lymphocytes we'll be talking in the next class. So for now this much is enough. This chapter is almost complete.